हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार जी आयनु पखेर अगले कई फ़हालू का हबीबी माई फ्रेंड्स छा हाला जिथे पैर होती खैर। मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेम इन टीवी। व्यूअर्स, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारीफ़ और तारुफ़ की मोहताज नहीं, बेपनाह काम किया टीवी के लिए, फ़िल्म के लिए, थिएटर के लिए, और ख़ास तौर पे आजकल जो हमारे तमाम टीवी चैनल्स पे एक सीक्वेंस चल रहा है कॉमेडी का, उसमें से एक प्रोग्राम के ये बड़े मजबूत हिस्सा भी हैं और बहुत से प्रोग्राम्स में परफॉर्म भी कर चुके हैं उसी तरह के बहुत से प्रोग्राम में। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम अयूब मिर्ज़ा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? सर मैं ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं कोई बात नहीं, शुक्रिया वाली बात ही कोई नहीं हैगी, क्योंकि तुसी साडे वड्डे भाई हो या छोटे हो या साडे वीर हो, साडे संगी हो, साडे तुसी मतलब हर तरीके नाल साडा तुहाडा प्यार दा रिश्ता है। ਅਸੀਂ खून ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ नहीं ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ एहसास ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ वाह ਹਾਂ। वाह। एहसास होएगा तो खून काउंट होएगा, अगर एहसास नहीं हैगा तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ बिल्कुल। खून काउंट नहीं होएगा। एग्जैक्टली। ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, व्यूअर ਸਾਡੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ? जी मैं देखो सब तो पहले मेरा उस्ताद खाना शान साहब दे वालद साहब मोहतरम रियाज शाहिद साहब वाह वाह। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਆਰਫ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਝੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਬੂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਬਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ ਖਵਾ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੜੇ ਮਰਾਹਿਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫੂਕ ਲਈਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੱਲਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੌੜੀ ਵੱਡੀ ਛਾਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਹੋਣ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਲਾਕਟ ਗਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚੋ ਪਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁੱਕੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਲੜ ਹੈ, ਇਹ ਨੱਡਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੀ ਗੱਭਰੂ ਆਏਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਜਾਂ ਖਾਲੇ ਦੀ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਫਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੌਟ ਬੁਆਏ ਨੇ, ਚਾय ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੌੜਾ ਛਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੌੜਾ ਛਾਤਾ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਡਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੈਲਟ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਨਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੌਲਾ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੀ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੀਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਭਈਆ, लेकिन मैं वो दोस्त कुछ कहते ना कुछ अपनों का नाम आता है, बेहतर है यही खामोश रहे। वाह वाह। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। तो देखें, बात तो ये है कि कभी अपने थे, अपनों का नाम सुनते थे बचपन में कि यार अपना नाम है, अपने नाम आए हैं, अपने हैं, ये मेरा ताया है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी खाला है, ये मेरी मतलब मेरी बहन का बेटा है या मेरे ताए का बेटा है। बड़े रिश्तों का एहसास होता था
और एहसास के रिश्ते थे। किसी को कांटा भी लगना तो कहना वो इससे कांटा क्यों लगा। अब तो शीशा लग जाए, छुरी लग जाए तो वो कोई नहीं किसी को पूछता, मशवरा दे सकता है, मेरा दर्द नहीं ले सकता। ਯੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, 1 ਬਾय 1 ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਵਿਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਦੋਤਰ ਪੋਤਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਣੇਵਿਆਂ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਮ ਦਮ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰੇਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਮਦ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਅਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ। ਮਨਵਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਮੁਜਦ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੈਰੀ ਲੂਜ਼, ਫਿਰ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ, ਮਨਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਨਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਡਾਂਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਂਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੋਟੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਜਾਨੋ ਕੋ ਬੱਤੀ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਖਵਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਪਰਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੀਰੀਪੁਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟਾਪ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕ੍ਰਾਸ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬਰਥ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਚਾਦਰ ਜੀ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਠੱਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨੀਂਦ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਮੈਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਊ ਜੀ ਟਿਕਟ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਟਿਕਟ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇਗੀ ਟਿਕਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਲਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਕਸਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਐ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। ऐसे ही है। अयूब मिर्ज़ा साहब अक्सर ऐसा होता है कि तुसी रिहर्सल भी की है, सेंसर भी विखा दी है जी, तो पता चलता है कि तुसी ड्रामे च नहीं है। ऐसा होया बाज़ दफ़ा ऐसा भी होया कि उन्होंने साडा प्रोड्यूसर ने वादा किया है कि जी थोड़ी तस्वीर अच्छी होएगी, पब्लिसिटी अच्छी होएगी। देखो ये कंप्रोमाइज़ नहीं होता, दिखती है तो बिकती है। शो बेस में शो होना पड़ता है, बेशक ऐसे ही है। शो होना पड़ता है। अगर आप शो नहीं होंगे तो फिर आपको बिकेगी क्या है। अयूब भाई कभी ऐसा हुआ है कि आप टॉयलेट में गए हो शावर लेने के लिए, जी जी, पानी फेंक बैठे अपने ऊपर और हाँ पता चला कि साबुन ख़त्म हुआ है, फिर आवाज़ ये कि साबुन लेके आओ यार। ये ऐसा हुआ है। मैं वो शावर ले रहा हूँ, शावर में पानी आया मेरे सारा इधर उधर ऐसा हुआ। मैंने कहा यार मैं साबुन उठाया, ओहो मैं क्या साबुन तो है ही नहीं यार, है कि बन गया। और मैं क्या साबुन दो यार, लेकिन वो साबुन भी मेरा ख्याल शायद बाहर भी नहीं है। वो फिर दुकान तो लैन गया तो मैं उन्नी देर तक जो ना बस मैं तो अक्ल नाल ही खलोता रहा बस। मैं क्या अच्छा ठीक है शुक्र जो ना मतलब शुक्र आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। फिर वो साबुन लैके आया, फिर उन्होंने मैंने करे बूहा खोल के साइड तो भी साबुन फड़ाया, तो फिर मैं नहाता हुआ तो फिर मैं बाहर आया, मैं शुक्र अदा किया। तो बड़े बड़े वाकयात ने। मैं एक बार अपने ओपन एयर थिएटर बच्चे भुल गया, मैं ड्रामा कर रही तुम की गल कर रहे हो, बच्चे भूल गए आप? जी बच्चे भूल गए। वो ड्रामा कर रहा हूँ, वो सामने बैठे हुए हैं, उनको इंटरवल वो एंटरटेन भेजा। एंटरटेन के बाद फिर वो जनाब वो भाभी आपकी आई हैं, तो वो आके मिलके आर्टिस्टों को मिलवाया, सारा बच्चों को ऐसा सारा किया। तो वो जब ड्रामा ख़त्म हुआ मैंने अपनी प्रॉप चेंज की है, चेंज करके तो मैं मोटरसाइकिल किक लगाई, मैं घर चला गया। घर मेरा डिफेंस मोड़ दे, तो वहाँ से वापस आया। मैंने कहा वो मेरे घर दे, उन्होंने पूछा गुआढ़ियों ने, मैं कहा जी कितने गए ने, कहते वो तो तुहाडे नाल गए सन। मैं कहा ओए होए 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 यार मैं तो उत्थे भुल आया थिएटर में। मैं तो बच्चों ओए होए 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 मैं तो उत्थे भुल आया, वो बच्चों उत्थे भुल आया। तो उन्होंने जनाब कहा कि वो तुहाडे नाल गए सन। मोटरसाइकिल स्टार्ट ही मैं उत्थे हवेली खड़ा किया, तो मैं 80 रुपये उसले लगते सन डिफेंस मोड़ तो लिटन अपना जो लारसन रोड तो। जी जी। मैं उत्थे आया तो मेरे बच्चे आते हैं खलोते हैं, कहते असी तुहाडा बटन टुटा वेखीए तो साडा दिल सड़दा ते तुसीं सानूं बच्चों समेत भुल के चले गए। मैं कहा बंदा किसी वेले भुल जाता है, तो भुल गए हैं, किसी वेले गलती हो जाती, माफ़ी। अयूब भाई हमारे सुनने में है कि आप जब फर्स्ट टाइम पे जहाज़ में बैठे थे तो बड़ा घबराए थे आप। मैं बहुत घबराया था, मैं बहुत घबराया था। एयर होस्टेस को देखकर या फिर जहाज़ की जो बुलंदी थी उसकी परवाज़ को देखकर, किसको देखकर आप घबराए थे? एयर होस्टेस को देख के बंदा घबराता तो नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ मांग लेता है तो खाने पीने के लिए है जी। तो वो बातें करती हैं, हाँ ना करती हैं, ज़हन उधर लगा रहता है बातों बातों में उतनी देर में। भले इंसान किसी की टिकट पर जा रहा हो, हाँ किसी की टिकट क्या मतलब, आई मीन के स्पॉन्सर टिकट हो, हाँ हाँ उन्होंने प्रोटोकॉल आपको ऐसी देना जिस तरह आपने खुद परचेज किया है। जी खुद परचेज। हेलो यस कैन आई हेल्प यू प्लीज, हेल्प है ना। हाँ वो ऐसे बात वो चीज़ प्लीज़ जूस प्लीज़ पीना कलोडा और ये वो फला जो भी है, तो को मकई की रोटी मिल जाएगी। एक दफ़ा मैंने उसको ये कह दिया तो जो जहाज़ चूरन मिल जाएगा, उन्होंने कहा चूरन की तुसी तो हकीम की दुकान पर आए। बड़िया गल्लां होंदियां रहियां सर। तो सर जब आप जहाज़ में बैठे फर्स्ट टाइम, हाँ जी, हमारे सुनने में है कि आप बड़ा घबराए थे कि जी अयूब मिर्ज़ा साहब फर्स्ट टाइम जहाज़ में बैठे हैं, बोर्डिंग की है, बोर्डिंग करने के बाद जब आप प्लेन में गए सीट बेल्ट बांधते हुए भी आपको दिक्कत हो रही थी, ये क्या इसमें कितनी सच्चाई है आप खुद बताइए। ये मुझे इस बात का विवर मालूम नहीं था कि बेल्ट कैसे लगाते हैं और कैसे बैठते हैं और एयर होस्टेस को कैसे मतवज्जा करते हैं, बुलाते हैं। और अपने जो जितने भी पायलट का कैबिन आगे था तो वहाँ तक तो हमारी जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम तो पहले सीट से जहाज़ की जो चढ़ाई हुई तो फिर हम ऐसे हो गए, ऐसे डर गए ऐसे करके। तो जब वो जहाज़ ऐसे हुआ बराबर हुआ तो फिर सांस में सांस आया। तो बेशतर वाक़यात ऐसे हुए हैं जो कि मतलब शायद मुझे कुछ याद भी नहीं है, लेकिन बड़ा मज़ा आया ये सफ़र का। अयूब भाई अपनी पसंद का कोई सॉन्ग हमारी पब्लिक को एक सुना दीजिए जो आप अपने शौक़ से अपने मज़े में गाते हो। जी बड़े सॉन्ग हैं, जैसा कि एक पंजाबी है, एक तो लफ्ज़ में आपको सुनाऊंगा। जी जी श्योर, अंतरस्थाई पेश करूंगा। जी जी। 10 वे वकीला सरकारी केड़ा लाए, 10 वे वकीला सरकारी केड़ा लाए, दिल नू चुरावे जेड़ा, दिल नू चुरावे जेड़ा, ओदी की सजा है। 10 वे वकीला
सरकारी केड़ा। वाह 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 वाह। अयूब मिर्ज़ा साहब, ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप कहते हैं कि आज पूरी नहीं हुई अभी तक? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश में आप सच पूछें? जी जी बताएं, आप सच ही, आप चाहते हैं आप सच बताएं। ये देखें, मेरे सबसे जो है ना, सबसे दिल की बड़ी ख्वाहिश है, सबसे बड़ी दिल की ख्वाहिश है, मैं हज करूँ, अल्लाह का घर देखूँ। वाह वाह वाह। और इंशाअल्लाह ताला मैंने एक नात भी पढ़ी है, तो वो मेरे दिल की दुआ है कि गुज़र हो जाए मेरा भी अगर ताइबा की गलियों में, तो सारी ज़िंदगी कर दूँ बसर ताइबा की गलियों में। वाह 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 वाह। हवाएं रहमत हक़ की वहाँ चलती हैं रोज़ो शब, ये देखा है मोहब्बत का असर ताइबा की गलियों में। बरसता नूर है शाम व सहर ताइबा की गलियों में। वाह वाह वाह। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जाऊँगा, मेरा अल्लाह बुलाएगा। ये बुलावे की बात है, बेशक, पैसे की बात नहीं है। पैसे की बात नहीं है। वो पैसे बुलावा- वाले तो वो हैं जो अल्लाह के घर के करीब रहते हैं, तो उनको नसीब नहीं है। उनको नसीब नहीं होता है। वो करीब रहते हैं, उसी शहर में रहते हैं। ऐसी 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 है। लेकिन ये है कि भैया, ये जो होता ना, ये बुलावे की बात है। अयूब मिर्ज़ा साहब, आपने कभी अपनी हथेली किसी के रुखसार पर रसीद की? नहीं, आज तक मुझे कोई लाशौरी पे भूले चुके अदरा मजाक हो गया होगा, वगरना मैं इस तरह का काम भी नहीं करता, ना इस तरह का हाथ दराजी करता हूँ, ना किसी को इस तरह की कॉमेडी करता हूँ। कभी आपको किसी सीनियर ने ऐसा किया कि उनकी हथेली आपके रुखसार पर रसीद हो गई हो? नहीं, सीनियर करेंगे तो, अगर करें भी तो मेरे लिए वो बड़ा एजाज़ होगा, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी इस्लाह के लिए होगा। तो मेरे सीनियर हैं, खालिद अब्बास डार साहब हैं, इरफान कोसर साहब हैं, और हमारे जो हैं, और मैं क्या क्या बताऊंगा, यानी इस वक्त मौजूदा हालात में तो हमारे इधर इस वक्त जो डायरेक्शन है, हमारे नसीम विकी साहब और नासिर चिनोटी साहब, सरदार कमाल साहब। सरदार कमाल साहब से हमें बड़ा शिकवा है, ये मैं इनकी डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। ये थोड़ा अर्सा पहले मैं इनकी डायरेक्शन में गया हूँ, तो उन्होंने मुझे प्रेफरेंस नहीं दिया। उन्होंने कहा यहाँ कहीं यार बिठाने को, इनको कोई पब्लिक बिठाओ, एंट्री दे दो, बस वो इधर मुंडा भेज दो, नाले ना देना दो भेज दो। वो सुन के सरदार कमाल साहब, दिल, जी सरदार कमाल साहब ने ये कहा, और मेरे दिल को नहायत दुख हुआ कि आप मेरे जूनियर हो और मेरे से आप मुझे नज़रअंदाज और डिग्रेड करके। सरदार कमाल साहब आपसे जूनियर हैं? मेरे ढेर जूनियर हैं, मेरे वो बहुत जूनियर हैं। तो इस चीज़ का दुख होता है, जो दुख वाली बात हो वो करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, तकलीफ हो तो कंध चढ़ के कहना चाहिए, ओए मैनू तकलीफ है, मैनू बचा लो। कोई तो बंदा राहगीर पूछेगा तुझे क्या है, एग्जैक्टली यार इसका हाल पूछो। तो वो मुझे उनकी बातों का बड़ा दुख हुआ, लेकिन ऐसे बात दोस्त करते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए। अयूब मिर्ज़ा साहब, हम एक नाम लेंगे, आपने उसके बारे में कोई एक लाइन बोलनी है जी। ये हमारे सेगमेंट की शर्त है कि लाइन एक ही होनी चाहिए। हुक्म करें आप। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब, देखें मैं एक बात करूँगा सर, एक लाइन। मेरे फेवरेट है, ओके, और मेरे फेवरेट हैं, मेरे फेवरेट हैं। ओके। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब भी मेरे फेवरेट हैं। जनाब जरदारी साहब। जरदारी साहब, अब देखें, अब मैं क्या कहूँगा, लाइन है क्या? वो हमारे मतलब सियासी सदर पाकिस्तान भी रहे हैं, सियासत में भी उनका हिस्सा है, अच्छे बिलावल साहब कैंडिडेट हैं। बिलावल साहब भी अच्छे हैं। जनाब शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब भी अच्छे हैं, पहले नून लीग में थे, अब वो इधर आ गए। जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान साहब तो वक्त के हाकम हैं, हम सलाम करते हैं। सर, व्हाट्स अबाउट जनाब सुहेल अहमद साहब? सुहेल अहमद साहब, देखें, सुहेल अहमद साहब जैसा इंसान मैंने अपने, देखें मेरा वो बड़ी देर से उनका ताल्लुक़ है, जो हमसे हार्ड बीती है ना, हम वो बताएंगे। सुहेल अहमद जैसा आदमी, उन जैसा बंदा, इंसानी हमदर्दी एहसास करने वाला इंसान मैंने अपनी नज़र से किसी और जगह पे नहीं देखा। वो जो बात करते हैं हकीकत करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं हो सकता वो कह देते हैं भाई ये नहीं हो सकता। ओके सर। खालिद अब्बास डार साहब। खालिद अब्बास डार साहब तो हमारे बाबा ड्रामा हैं और हमारे बड़े हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। वेरी नाइस मैन। सर, जनाब कवी खान साहब। कवी खान साहब भी हमारे बड़े हैं, हमारे मौसन हैं, वो तो देसी घी के लोग हैं। जनाब नैयर इजाज़ साहब। नैयर इजाज़ साहब बहुत बड़े लोग हैं, हम बचपन से इनको देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में, सर आप तो ये ना कहें कि आप बचपन से देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल बचपन से में तो हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल में जूनियर हुए हैं, मेरे जूनियर हैं। अच्छा। लेकिन टीवी में वो सीनियर होंगे। हाँ। फिल्म में, टीवी में उन्होंने काम किया, ये मौका मिलने की बात है। देखिए, जिसको मौका मिलेगा वो मौका जो है उसको फ़ायदा उठाते हुए उसमें परफॉर्म करेगा। हम टीवी में नहीं थे, हमें कोई जानता नहीं था, दूसरी गली में कोई नहीं थे जानता, हमें स्टेज के हवाले से जानते थे।
ये हमारे पे अल्लाह के बाद, अल्लाह के वलियों के बाद आगा माजिद, सलीम अलबेला, हनी अलबेला, नासिर चिनोटी और आफ्ताब इकबाल साहब का एहसान है, जो हम इस वक्त पूरा वर्ल्ड में पहचान हैं। ओके सर, वर्ड्स अबाउट महविश हयात। महविश हयात बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है। मैंने उनकी परफॉर्म जो है ना, उनके साथ परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बहसीत आर्टिस्ट मुझे बड़ी पसंद है कि फहद अच्छी आर्टिस्ट है। फहद मुस्तफ़ा भी अच्छे हैं। फहद मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफ़ा कॉमेडी करते हैं, लेकिन इतनी कॉमेडी नहीं उनको आती, लेकिन ऐसी करनी नहीं चाहिए। एहसन खान। एहसन खान तो वो तो मेरा दोस्त है, मेरी जिगर जान है। और फैसल कुरैशी वो मेरा भाई है, मेरा वो लंगोटिया दोस्त है। ओके सर। फवाद खान। फवाद खान क्या बात है, बब्बर शेर हैं सर। प्यारे क्या हैं। क्या सोच रखते हैं आप सनी लियोन? सनी लियोन देखें, सनी लियोन मैं नहीं कह सकता। क्यों आप क्यों नहीं कह सकते? सनी लियोन का शुमार इन लोगों में नहीं होता। नहीं, मैं शुमार की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा कोई एक लाइन बोलनी है आपने। नहीं, उनके बारे में ये है कि बस इंसान है, वो जहाँ है अल्लाह उनको खुश रखे। व्हाट्स अबाउट जनाब अमिताभ बच्चन साहब? अमिताभ बच्चन साहब जो हैं, देखें आर्टिस्ट होता है ना, इनका कोई मुआहदा नहीं होता कि हम उधर जाएंगे, कोई ये किसी की ज़र खरीद नहीं होता। पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी है। और ये हर आर्टिस्ट का जो होता है ना, ये अपनी ज़िंदगी उसके अपने लिए नहीं होती। आर्टिस्ट की अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं होती। आर्टिस्ट की ज़िंदगी अपने प्यारों के लिए, मदाहों के लिए, अपने परस्तारों के लिए, अपनों के लिए, ख्वाहिशों के लिए, दरवेशों के लिए, अपनों के लिए, गैरों के लिए, ये आर्टिस्ट की ज़िंदगी होती है। अपने घर में सरबराह है तो उसके अपने रिश्तेदार अहबाब में जो माड़े हैं, तगड़े हैं, वो मतलब जैसे भी हैं उनके लिए है। हुक्मरान की ड्यूटी भी अपने लिए नहीं होती, ज़िंदगी आवाम के लिए होती है। ऐसे ही है। सर क्या कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स को, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए व्यूअर, सबसे बड़ी बात यह है, हम आपसे प्यार करते हैं और आप भी हमसे प्यार करते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती, ज़िंदगी, सेहत और सेहत की बादशाही दे। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ की दुआ लें और बाप की दुआ लें, और माँ की दुआ लें और बाप की बद्दुआ से बचें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, जिसने माँ बाप को खुश कर लिया उसने अपने रब को खुश कर लिया। खुदा की कसम, ये ज़िंदा मिसालें हम लोग वो देखते हैं जो माँ बाप की बेअदबी करते हैं, वो दुनिया में ज़लीलो ख्वार होते हैं। हमने अपनी आँखों से देखा है, अपनी आग में जलते देखे हैं। फिर वो माफ़ी मांगते हैं, फिर वो उनको कुछ अल्लाह का कलाम सुनाया जाता है, वो उनको सबक दिया जाता है, फिर वो दिल में रखते हैं, वो याद रखते हैं, मान लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान कर देता है। व्यूअर्स, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे जनाब अयूब मिर्ज़ा साहब। बहुत मज़ा आया इनका गुफ्तगू करने का। हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने होस्ट, अपने दोस्त अली असलम को दे इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।